So welcome back to YouTube platform of Divine IS Academy. In this video we'll discuss about coalition government, and as we all know जो opposition parties है 26 opposition parties have formed an alliance to fight 2024 general elections of Lok Sabha, right? So in this video we'll discuss about what is coalition government, उसके क्या features होते हैं, what are merits, demerits, etc. And basically this topic is for GS2 गवर्नेंस एंड प्रीवियस ईयर में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं कोलिजन गवर्नमेंट से. सो कम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक कोलिजन गवर्नमेंट. सो बेसिकली कोलिजन का जो मतलब है दैट मींस इन पॉलिटिकल टर्म्स दैट इज अलायंस बिटवीन मिनिमम टू पार्टीज. सो कोलिजन गवर्नमेंट जो है अगर हम इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें सो फ्रॉम 1977 ऑनवर्ड्स हमें कोलिजन गवर्नमेंट देखने को मिली है, even at central level and state level as well. So basically coalition government होता क्या है? Coalition government is a form of government in which political parties cooperate in a form of government. So there are different political parties. So हर political party का एक different ideology होती है, different agendas होते हैं, और उन सारी चीज को साइड पे रख के political parties come on a same level playing field and there they form a government. The usual reason of such a arrangement is that no single party has achieved the absolute majority for an election. Now अगर हम इसको एक example से समझें, for example there are 100 seats, right? And there are three parties. We will say there are three parties A, B, C. Now out of 100 the majority mark is 51. Any of the parties has to achieve minimum 51 seats to form the government. अब हम देखते हैं suppose A has achieved 50 और we'll say B has achieved 25 और C has achieved 25. तो इनके अलग अलग नंबर्स हैं. Now no party has achieved 51. अब क्या होगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल A और B ये दोनों मिलके अलायंस कर लेते हैं, तो इनकी सीट्स कितनी हो गई 75. They have crossed 51. So now they'll form a government. So this type of government is the example of coalition government where no single party forms a government. There is cooperation between different parties, right? So इसको थोड़ा और डीप में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि coalition government क्या होता है. So coalition usually occurs in the modern parliamentaries when there is no single party can muster or majority of votes, right? Again same thing, two or more parties who have enough elected members between them to form a मेजॉरिटी. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि मिनिमम टू पार्टीज इनके पास अगर इतनी एनफ सीट्स हैं कि अगर ये अलायंस करती है तो इनकी जो सीट्स होती हैं वो एक टोटल सम बन जाता है ऑफ द अचीव्ड सीट्स ऑफ दीज फ्रॉम दीज पार्टीज, राइट? इनके एक बार हम फीचर्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या फीचर्स होते हैं कोलिजन गवर्नमेंट के. अब आपको मैं बेसिक समझाऊंगा क्या होता है. नॉर्मली जैसे जब हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं तो एनसीईआरटीज में भी क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें फेडरलिज्म चैप्टर है, तो उसमें भी कोलिजन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से समझाया है. उसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? सो फर्स्ट फीचर इज कोलिजन इज फॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड. अब इसमें क्या है, द मेन अचीवमेंट इज reward. Now suppose there are two parties, if one party is helping the other party, now there is a power sharing between two parties. So power sharing के example में भी हम इसको समझते हैं coalition government को. So एक party that gives reward to the other party in return, क्योंकि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अपने जितने भी उनके मेजॉरिटी सीट्स थी, जितनी भी अचीव्ड सीट्स थी, वो उनके जो सम टोटल जो सम ऑफ द सीट्स थी उसमें जोड़ी थी, तो उसकी वजह से दे हैव गिवन द रिवॉर्ड. नाउ द कोलिजन इंप्लाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज. सिंपल, एटलीस्ट we need two parties. Third, the underlying principle of the coalition system stands on the simple fact that of temporary conjunction of specific interest. Now यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है that this is not permanent and this has never been permanent. जो पार्टी के allegiances हैं वो बदलती रहती हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं इवन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इन इंडियन पार्लियामेंट एज वेल एज एट स्टेट लेवल. तो इसमें जो जंक्चर है, जो दैट पॉइंट जहां पे आके दो पार्टीज आके मिलती हैं, दैट इज वेरी टेम्पररी. वो टाइम के साथ वो बदला भी जाएगा, हम आगे भी इस चीज को समझेंगे. Now the coalition politics is not static but a dynamic affair. Now static means के एक चीज जो है वो स्टिक होकर रह गई, लेकिन डायनामिक मीन्स विच चेंजेस विद टाइम. सो विद टाइम वी कैन से दैट दीज पार्टी एलिजियंसेस कैन चेंज. और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमें प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें भी देखने को मिलते हैं कि जो रीजनल पार्टीज हैं या जो छोटी पार्टीज हैं वो एक बड़ी पार्टी के साथ अलायंस करती है, और अगर कोई भी ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए देन दे डिफॉर्म देयर अलायंसेस.
Next, the keynote of collision politics is compromised and rigid dogma has no place in it. This is also very important to understand कि यहाँ पे अगर आपका कोई rigid व्यू पॉइंट है किसी भी पार्टी का, तो उसको यहाँ पे बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं किया जाता है, उसके जो भी इंटरेस्ट है उसको साइड पे रखा जाता है. सो बेसिक हम आगे मेरिट्स डीमेरिट्स में भी समझेंगे कि अब डिफरेंट पार्टीज है. नाउ इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे रिप्रेजेंट डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स रिलीजन्स, डाइवर्स बिलीफ ऑफ पीपल. तो उस सारी चीजों को साइड पे रख के यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. Right. Next, the collision works on the basis of minimum program which may not be ideal for each partner of a collision. So इसमें बहुत जो programs हैं वो बहुत limited रखे जाते हैं. Now you cannot overreach your limit or you cannot like be very actively involved in the political or the collision government. So जो basics चीजें हैं जो आपको बहुत minute चीजें हैं minimal रह के इसमें काम करना पड़ता है. The pragmatism and not ideology is hallmark of the coalition government. Now, pragmatism means कि आपकी जो भी rigidity है, आप एक ही ideology या एक ही path के ऊपर चल रहे हो in a single political party, that you have to not follow. यहाँ पे आपको बहुत accommodative होके चलना पड़ेगा. You cannot apply your majoritarianism or any of those ideologies, your we can say diplomacy or your that. कोई भी आपका ऐसा अगर कोई भी आपका थॉट है, कोई भी आपका प्रोसीजर है जिसमें आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, सो देयर इज नो प्लेस ऑफ दैट इन कोलिशन गवर्नमेंट. एंड लास्ट इज द पर्पस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इज एडजस्टमेंट टू सीज पावर. सो एडजस्टमेंट और अकोमोडेशन और वी कैन से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जस्ट टू ऑब्टेन पावर. सो अल्टीमेटली द गोल ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इज टू अचीव पावर. जैसे अगेन हम थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे पहले हमने समझा 3 पार्टीज, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 सीट्स हैं और 35 सीट्स हैं, 35 सीट्स हैं. 3 पार्टीज को 30, 35, 35 मिल गए ना. यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ना जैसे जो स्टेट्स हैं उसको हम एक टर्म देते हैं हंग असेंबली. हंग असेंबली वेयर नो पार्टी मैनेज टू अचीव द अचीवेबल वोट्स या मेजॉरिटी मार्क. अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि देर आर वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस. तो यहाँ पे ना सिचुएशन एक बहुत डेलिकेट बन जाती है एंड ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 35 अगर मिल जाए तो ये 70 बन जाएंगे, ये मेजॉरिटी बन जाएगी. ऐसे ही अगर ये 30 और 35 मिल जाए तो भी ये मेजॉरिटी ही बनेगी. तो यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बहुत एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ मिलेगी. सो यहाँ पे टू द मेन एम इज टू अचीव पावर वट एवर इट टेक्स. सो वट एवर इट टेक्स यहाँ पे जो पावर है वो हमें अचीव करनी है. सो दीज वर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट. अब हम इसके कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स समझेंगे. पहले आते हैं मेरिट्स पे. मेरिट्स मतलब फायदे क्या होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के. देयर आर इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स लाइक इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट वेरियस इंटरेस्ट्स आर अकोमोडेटेड. नाउ जैसे मैंने पहले आपको बोला कि हर पार्टी के डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं. सो एवरी पार्टी गेट टू क्लियर और गेट टू टेक देयर इंटरेस्ट्स फॉरवर्ड. उनकी जो जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, जो भी रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, सो उनकी वो प्रॉब्लम्स जो है वो सुनी जाती हैं. उसके ऊपर दे आर अकोमोडेटिव. नेक्स्ट, कोलिशन गवर्नमेंट सर्व्स एज द conduit of meeting the expectation of various groups. Same जैसे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट. सो इन इंडिया वी हैव डिफरेंट डाइवर्स लाइक कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटीज, रिलीजियस डाइवर्सिटीज. सो हर एक जो कम्युनिटी है, हर एक जो ग्रुप है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या फिर जो भी रीजनल लेवल पे एनी टाइप ऑफ यूनियंस, उन सबके जो भी इंटरेस्ट हैं उनको रिगार्ड किया जाता है. सो दिस मीन्स दैट कोलिशन गवर्नमेंट इज मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द इलेक्टोरेट एंड रिफ्लेक्ट पॉपुलर ओपिनियन. जो भी पॉपुलर ओपिनियन है, जो भी मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन है, उनको ये रिफ्लेक्ट करता है. Next, coalition government is made up of several political parties, each with its own ideology, और हर पार्टी का एक different purpose होता है. So, however, government policy necessitizes the agreement of all coalition partners. As a result, a coalition government leads to politics based on consensus. This is also very important to understand. Consensus मतलब एक level playing field होता है. जितनी भी parties हैं वो सारी एक level पे आके मिलती हैं और सबको एक दूसरे के interest जो है उनको accommodate करना पड़ता है, उनको regard करना पड़ता है. Next, the federal fabric of Indian political system is strengthened by the coalition politics. So federalism या cooperative federalism की बात करें, so coalition government जो है that is
the very foundational level or the basic unit level of our federal system, because यहाँ पे अब का जो टाइम चल रहा है, like India is a multi-party system, like we have different examples like US or UK which is a two-party system, or China or Russia which is a single-party system. So India being a multi-party system, यहाँ पे no single party can achieve, or I will say it is difficult to achieve the maximum majority by a single party. So most of the जो बड़ी parties हैं they try कि हम छोटी पार्टीज के साथ मिलके एक बड़ा कोलिजन बनाए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गठबंधन की सरकार, या फिर महागठबंधन भी बोलते हैं हम इसको, राइट. सो डिस्पोटिक कंट्रोल इज लेस लाइकली विद द कोलिजन गवर्नमेंट. सो यहाँ पे डिस्पोटिक कंट्रोल मींस नो सिंगल पार्टी कैन, वी कैन से, practice their monopoly or practice their majoritarianism over our political system. So in coalition government, the people are from different parties, the ministers, the parliamentarians or the legislators are from different parties. तो उनके जो regards, जो उनके interest है, उन सबको regard किया जाता. So these were some merits of coalition government. अब इनका हम कुछ demerits पे समझ लेते हैं. So at the same time we have merits as well as demerits of coalition government, such as this is unstable and at risk of becoming unstable. जैसे मैंने पहले आपको बताया, अब यहाँ पे जो लॉयल्टीज हैं, जो पावर एलिजियंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हैं. दे आर वेरी वल्नरेबल, दे कैन इजीली शिफ्ट फ्रॉम टू एंड फ्रो. The government falls apart due to differences of opinion among the coalition members. So obviously there are different parties, so obviously they are going to have the different opinions. So whenever at any point they can just make the part their ways, और अपने जो लॉयल्टीज हैं वो किसी और पार्टीज के साथ दिखा सकते हैं. सो दैट इज वेरी अनस्टेबल. और ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 years के लिए उन्होंने कोलिजन किया है तो 5 साल तक ही ऐसा रहेगा. ड्यूरिंग 5 years एनी टाइम एनी पार्टी कैन लीव द कोलिजन गवर्नमेंट. In the coalition administration, Prime Minister must confer with the coalition partners before making key decisions. So Prime Minister, basically Prime Minister कौन होता है? अगर हम Constitution को study करें, he is the leader of the majority party. So in any coalition government, the largest party is that party which has achieved the maximum votes, और उन्हीं के जो leader होते हैं वही Prime Minister होते हैं. So if we talk about the coalition government, यहाँ पे भी उनको control कौन करेगा? Prime Minister will control all the parties which have formed the alliance or coalition, right? So Parliament, it is the, we can say, a key responsibility or duty of the Prime Minister कि यहाँ पे जितने भी political parties हैं उनके साथ एक जो relation है that become very cordial, that become very smooth. Next, the coalition partners steering committee or coordination committee functions as the super cabinet, undermining the cabinet's role and position in the working of the government machinery. So ruling government जो है mostly parliament में, if you see that cabinet जो ministry होती है और the council of ministers, and this is the highest policy making body in our constitutional system, in our parliamentary system. So ऐसे कई जगह पे हमें देखा जाता है. दिस इज नॉट कंपल्सरी, हर जगह पे नहीं होता. देयर इज अ स्टीयरिंग कमेटी जिसमें डिफरेंट पार्टी मेंबर्स होते हैं और उसको हम सुपर कैबिनेट भी बोलते हैं. सो सम टाइम दिस सुपर कैबिनेट टेंड टू सुपर इम्पोज द अदर कैबिनेट, जो हमारी कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एंड दे ट्राई टू रिप्लेस दैट कैबिनेट इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिसाइडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ आवर नेशन. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर कोलिजन गवर्नमेंट. Next, regional leaders participate in national decision making by bringing regional facts to the fore. Now, इसमें बहुत सारे regional parties हैं, तो जो regional interests हैं, regional problems हैं, they are discussed at the national level. Yes, they are the point of concern, but sometimes at national level we have bigger issues to discuss. We have bigger issues to talk about and resolve about. So वो जो कहीं जो issues होते हैं वो sideline हो जाते हैं. So यहाँ पे regional parties जो हैं, they tend to clear out their emotions or clear out their demands or demands of their people. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक negative part play करता है कि जो national importance के जो भी subjects हैं वो sideline हो जाते हैं. And last is the coalition government members do not take responsibility for the administrative mistakes and shortcomings. अब यहाँ पे क्या है, एक कोलिजन गवर्नमेंट है. इफ द कोलिजन गवर्नमेंट में जो भी रूलिंग पार्टी, इफ इट हैज फेल्ड टू डू समथिंग, तो यहाँ पे द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर द मेजॉरिटी पार्टी, नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट. सो जो छोटे मेंबर्स हैं दे आर ऑलवेज साइडलाइन. वो एक
एक सेफ प्लेस पे हो जाते हैं किसी भी मिस्टेक से, या कोई भी अगर ऐसी भी सिचुएशन आ जाए जिसमें देयर हैज बीन सम लॉस टू एनीथिंग, राइट। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है इट हैज टू फेस ऑल द क्रिटिसिज्म और ऑल द नेगेटिव्स, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द demerits of coalition governments. So these are some of the coalition parties in India. So starting from 1977, जो first coalition party बनी थी जनता पार्टी, which was obviously led by मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे जो इमरजेंसी थी उसके बाद से फिर गठबंधन की सरकार बननी स्टार्ट हो गई, एंड टिल डेट आज जो रूलिंग अलायंस है उसको हम एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इससे पहले 2014 से पहले देयर वाज यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दिस एनडीए इज लेड बाय बीजेपी एंड यूपीए वाज लेड बाय कांग्रेस। सो एट प्रेजेंट ऑन July 18th, so there were 26 opposition parties who came together and formed an